has died under mysterious circumstances, triggering a police investigation into possible foul play. Akriti was found critically injured near NDMC flats in Lodi Colony hours after leaving work with her husband, later declared dead at AIIMS, with police probing allegations of dowry harassment and all possible angles. This is the third such case to make headlines within the last couple of months. The deaths of 33-year-old Twisha Sharma in Bhopal and 22-year-old Deepika Nagar in Greater Noida, coming on the heels of each other, had sparked national outrage. Well, let's get in some breaking news that is coming in regarding this entire case. Police have arrested now the husband of the deceased woman as investigation intensifies into the alleged dowry theft. Authorities are now focusing on reconstructing the sequence of events leading up to her death. Delhi police have also arrested Arastu Sikka, the husband of Akriti Sutar, after registering a case under provisions related to dowry death. Investigators are now also examining the CCTV footage from multiple locations to establish a clear timeline of her movements and last known interactions. Officials said that the post-mortem examination is yet to be conducted, which is expected to be crucial in determining the cause of the death. Police have also stated that all angles in the case are now being thoroughly investigated. So this is the latest update that we are getting for you. Now the police have finally managed to arrest the husband of the deceased woman. Remember that he was missing since this entire incident took place on Saturday, and now the police have managed to arrest the husband of the deceased woman. His name has been identified as Arastu Sikka, and the police now are in fact focusing on reconstruction of the sequence of events of that fateful death. Remember, it was only 72 days after her marriage that she has been now found dead, and the police are examining various CCTV footages from multiple locations in order to establish her last interactions, to establish a clear timeline of her movements as well. And the police are also saying that one of the most crucial parts of the investigation will be the post-mortem report which will be received, because that will help us determine the exact cause of death. Let me go across to my colleague Javed Hussain, who joins us live on the broadcast, who has been tracking these developments as well. Javed, अब ये सामने आ रहा है कि पुलिस ने हस्बैंड को अरेस्ट कर लिया है। दो तीन चीज़ें बहुत क्रूशियल है ये पूरे इन्वेस्टिगेशन में। एक तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है एग्जैक्ट कॉज ऑफ डेथ के लिए, और दूसरी बात है जब अब हस्बैंड को अरेस्ट कर लिया गया है तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, सीसीटीवी फुटेज, ये सब एग्जामिन किया जाएगा। देखिए, जो हस्बैंड है अरस्तु, उसको गिरफ्तार कर लिया गया दिल्ली पुलिस की तरफ से, क्योंकि देखिए डॉरी का जो केस है उस केस के अकॉर्डिंग जो है अभी तक जानकारी मिल रही कि एफआईआर दर्ज की गई है, क्योंकि शादी को भी 7 साल नहीं हुए थे, 2 महीने ही शादी को हुई थी। और 2 महीने के बाद जब आकृति ने जब ऑफिस ज्वाइन किया था, जो परिवार वालों ने दिल्ली पुलिस को बताया कि 1 तारीख से आकृति जो है ऑफिस जाना शुरू हुई थी। उसके बाद 4 तारीख को, जिस दिन आकृति की बॉडी मिली है लोधी कॉलोनी इलाके में, उस दिन वो दफ्तर गई है। दफ्तर से निकलने के वक्त शाम में परिवार वालों ने ये बताया कि वो अपने जो है उसने अपनी मां को फोन किया, उसके बाद वहां से निकली। लेकिन बताया जा रहा है कि जिस तरीके से आकृति लोधी कॉलोनी के उस फ्लैट में गई, वहां पर जबकि आकृति का जो ससुराल है वो पुष्प विहार के पास बताया गया है और मायका जो है वो संगम विहार में है। तो ऐसे में आकृति वहां पर क्यों पहुंचती है? आकृति का जो चुन्नी है, आकृति का जो फोन है, जो बैग है, वो सही सलामत छत पे मिलता है, और आकृति की जो बॉडी है वो नीचे की तरफ, यानी कि बिल्डिंग के नीचे मिलती है। उसके बाद जब पुलिस मौके पे पहुंचती है, पुलिस को जानकारी मिलती है, पुलिस उस पूरे बिल्डिंग को सर्च करती है, तो वहां से आकृति का जो फोन है उसको ऑन किया जाता है। ऑन करने के बाद लगातार आकृति के फोन पर घर वालों और उनके जो पति है उनका कॉल आना शुरू हो जाता है। देखिए, परिवार वालों ने दिल्ली पुलिस को बताया कि आकृति के साथ अरस्तु मारपीट करता था, उसे नौकरी छोड़ने की बात कहता था, और ये भी दावा किया गया परिवार वालों का, जो आरोप है आकृति के परिवार वालों का, कि ये कहा जाता था कि आकृति जो है वो अपने घर से कुछ भी नहीं लेके आई है। लेकिन दूसरी तरफ
दिल्ली पुलिस सोर्सेज का ये कहना है, जो अभी तक जांच में सामने आया है, कि आकृति ने हाल के दिनों में सोशल गूगल पे उसने ये सर्च किया था कि कैसे जल्दी जो है वो कैसे मौत आ सकती है, किस तरीके से सुसाइड किया जा सकता है। ये दिल्ली पुलिस का कहना है कि गूगल पे इस तरह की सर्च जो चीजें वो आकृति ने की थी। अब हालांकि अरेस्टू गिरफ्तार हो चुका है और उसके ससुराल वालों पर, आकृति के ससुराल वालों पर पूरी तरीके से ये आरोप लगाया गया और अब पुलिस आकृति के दोस्तों, जो उनके साथ काम करने वाले लोग हैं, उनसे भी पूछताछ करेगी। और इसके अलावा जिस तरीके से पोस्टमार्टम के बारे में बताया गया है कि पोस्टमार्टम कंप्लीट हो गया, लेकिन जो पोस्टमार्टम की इनिशियल रिपोर्ट है वो अभी सामने नहीं आई है, जिसमें ये पता चल पाएगा कि आखिर कॉज ऑफ डेथ क्या है, यानी कि मौत कैसे हुई है, क्योंकि परिवार वाले लगातार हत्या का आरोप लगा रहे हैं। और ऐसे में जिस तरीके से आपने ये पूछा कि क्या अब इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस पूरे क्राइम ऑफ सीक्वेंस जो इसको मैच करेगी, तो बिल्कुल देखिए सीसीटीवी फुटेज में भी आ रहा है कि जो 4 तारीख को जो है वो मेट्रो स्टेशन, लोधी कॉलोनी के पास के मेट्रो स्टेशन से वो निकलते हुए दिखाई दे रही हैं। उसके बाद सीसीटीवी में ये भी दिख रहा है कि वो उस बिल्डिंग, उस फ्लैट तक अकेले जाते हुए जो है मूवमेंट है। लेकिन फिलहाल पुलिस टेक्निकल एविडेंस और स्टेटमेंट के बेस पर इस पूरे सीक्वेंस को, उसके कॉल डिटेल्स को, उसके अलावा वहां पे क्या आकृति की लास्ट कॉलिंग किससे हुई थी जब आकृति नीचे गिरी, क्योंकि परिवार वालों का कहना है कि ये सुसाइड नहीं, ये मर्डर है। तो ऐसे में अब मर्डर या सुसाइड, इस एंगल को, इस थ्योरी को लेकर भी दिल्ली पुलिस परिवार के आरोप पर पुलिस इस थ्योरी पे भी जांच कर रही है। लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन है, जो एफआईआर दर्ज है, वो डॉरी डेथ में एफआईआर दर्ज की गई है, क्योंकि 7 जी साल जी अभी जी शादी को नहीं बिल्कुल हुई थी। जावेद, और आप बने रहें, एफआईआर की बात हम करते हैं। वी हैव सम ब्रेकिंग न्यूज रिगार्डिंग दी एफआईआर।